Good afternoon, my dear students. Welcome to Gradeup classes, and I hope I am clearly audible and clearly visible to all of you. And I hope all of you are doing very well, my dear students. So today is the fifth day or last day of our third mini series of quantitative aptitude. In previous four classes, we have discussed all basic concepts of percentages. In first two classes, I have discussed with you all basic concept and applications of profit and loss, profit percentage, loss percentage. How do we calculate profit and loss percentages? Percentage markup, percentage discount, and in previous two classes we have discussed all concept and applications of simple interest and compound interest. What is the difference between simple interest and compound interest? How do we calculate simple and compound interest? And in continuation to the previous classes, today I'll discuss with you all basic concept and questions based on that concept of averages. So averages is also one of the most important part of arithmetic. अब तक हमने अर्थमेटिक ही हमारा चल रहा है इस वाली सीरीज में, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में डिस्कस किया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, और आज मैं आपसे बात करूंगा ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट ऑन एवरेजेस की. ठीक है, चलिए फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, और उसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ एवरेजेस की, उस पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेजेस, how do we calculate averages, and some basic concept and formula of averages. चलिए, so let's start with basic concept of averages. ये कुछ कोर्स डिटेल्स है. ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज? तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Average is equals to sum of observations upon total number of observations. Average is equals to sum of observations upon total number of observations. I mean to say, if we want to calculate average of n number of observations, then how do we calculate the average of n number of observations, my dear students? So average of n number of observation is equals to sum of all these n observations upon n, that is total number of observation. For example, if I say there are 5 students in a class, and average age of each student is given as 15 years, 16 years, 20 years, 21 years and 25 years, and we have to calculate the average age of the entire class. So how do we calculate the average age of the entire class, my dear students? That is sum of observations, that is 15 plus 16 plus 20 plus 21 plus 25 divided by number of observations. How many observations are there? How many students are there in a class? That is 5. So average age of the entire class is 15 plus 16 plus 20 plus 21 plus 25. That is sum of ages of all 5 students upon 5. So 15 plus 16, 31 plus 20, 51, 51 plus 21, 72, and 72 plus 25 is 97. So what will be the average age of the class, my dear students? 97 upon 5. 5 1 ja 5, 5 9 ja 45, 5 4 ja 20. So average age of the entire class is 19.4 years. ठीक है, तो किस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैलकुलेट करके बताना है, तो
sum of these n observations upon n, that is total number of observations. As I told you, if say there are 5 students in a class and absolute age of each student is given as 15 years, 16 years, 20 years, 21 year and 25 years, and we have to calculate the average age of the class. So what will be the average age of the class, my dear students? It would be sum of ages of all 5 students, that is 15 plus 16 plus 20 plus 21 plus 25, that is total number of student, that is 5. So 97 upon 5, 19.4 years will be the average age of all these 5 students. तो अगर हमें किसी भी तरह के n number of observations का average calculate करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों को हमारा होता है सारे observations का sum divide by total number of observations. ठीक है, this is the way how do we calculate average of n number of observations. ठीक है, चलिए इसी में 2-3 specific case I'll discuss with you and then we will discuss some question based on concept of averages. ठीक है, चलो I hope this is clear to all of you कि average होता क्या है, calculate कैसे करते हैं. चलिए, now for example if I say that again there are 5 students in a class, again there are 5 students in a class and average age of these 5 students is 20 years. ठीक है, say there are 5 students in a class and average age of these 5 students is 20 years. Now if a new student comes to the class and average age of the class increases by 1 year, and average age of the class increases by 1 year, so what will be the age of new students. ठीक है, फिर से सुनो. There are 5 students in a class, average age of the class is 20 years, और उन्होंने बोला कि एक नया स्टूडेंट क्लास के अंदर आया जिसकी वजह से average age of the class increases by 1 year. So we have to calculate the absolute age of the new student. So how do we calculate? First method, my dear students, there are 5 students and average age of these 5 students is 20 years. So what will be the total age of these 5 students? 5 into 20, that is 100 years. So जो 5 बच्चे इनिशियली हमारे क्लास में थे उनकी टोटल एज कितनी है? 100 ईयर, 100 साल है. अब एक नया बच्चा क्लास में आया, यानी कि बच्चे कितने हो गए क्लास में? 6, और इस वजह से एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. सो प्रीवियस एवरेज एज वाज 20 ईयर, the new average age of the class will be 21. So what will be the total age of all these 6 students? 6 into 21, that is 126 years. So 5 बच्चों की टोटल एज कितनी थी? 100 years. 6 बच्चों की टोटल एज कितनी है? 126 years. तो what will be the age of the new student in the class? What will be the age of the new student in the class is 126 minus 100, that is 26 years. एक तो बच्चों ये तरीका है, यहां से हम डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है कि सर इनिशियली हमने सारे बच्चों की टोटल एज कैलकुलेट की, फाइनली हमने सारे बच्चों की टोटल एज कैलकुलेट की, और फाइनल एज में से हमने प्रीवियस एज को क्या कर दिया? माइनस. तो इनिशियल टोटल एज वाज 100 years, फाइनल टोटल एज वाज 126 years. तो व्हाट विल बी the age of the new student? 126 minus 100, that is 126 years. ठीक है, एक और मेथड और है हमारा जिससे हम इस क्वेश्चन को कंपैरेटिवली एक और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? देखो ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा तरीका है. Initially there were 5 students in a class, average age of the class is 20 years. एक बच्चा क्लास के अंदर आया जिसकी वजह से एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताओ कि इस एक बच्चे की आने की वजह से एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. सो अगर इस नए बच्चे की एज 20 साल ही होती, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज, अगर हम एक 20 साल का बच्चा ही क्लास के अंदर लेकर आते, देन there will be no change in the average age of the class. Then there will be no change in the average age of the class. How come? Initially 5 बच्चे क्लास में थे, क्लास की एवरेज एज थी 20 years. तो 20 साल के तो आप कितने भी स्टूडेंट क्लास के अंदर लेकर आ जाओ,
there will be no change in the average age of the class. तो first of all we can conclude that कि सर एक नए बच्चे के आने की वजह से क्लास की एवरेज एज क्या हो रही है, इंक्रीज. व्हाट डज इट मीन? इट मीन जो बच्चा आया उसकी एज डेफिनेटली क्या होगी, मोर देन 20 इयर्स. ठीक है, चलिए. अच्छा, तो मैंने बोला अगर 20 साल का बच्चा लेकर आते हैं तो क्लास की एवरेज एज में कोई चेंज नहीं होता, बट इस नए बच्चे के आने की वजह से एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. ये में गिवन है. तो इनिशियली 5 बच्चे थे, एक नया बच्चा आया, तो टोटल बच्चे क्लास में कितने हो गए, 6. एवरेज एज कितना बढ़ा हमारा, 1 ईयर. तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा, टोटल एज कितनी इंक्रीज होगी, 6 into 1 दैट इज 6 years. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि सर जो नया बच्चा आया उसकी एज 20 से कितनी ज्यादा है, 20 से 6 साल ज्यादा है. एंड 20 plus 6 and 20 plus 6 is equals to 26 years. तो अगर आप देखो तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं. वी नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशंस, वी नीड नॉट टू यूज एनी पेपर और पेन टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. 5 बच्चे क्लास के अंदर थे, एवरेज एज ऑफ द क्लास वाज 20 इयर्स. ठीक है, फर्स्ट मेथड की सर टोटल एज कितनी होगी, 5 into 20 दैट इज 100 इयर्स. अब एक बच्चा क्लास के अंदर आया तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो गए 6. एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. इट मींस न्यू एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 21. 6 बच्चे अब क्लास में हैं, एवरेज एज 21 है, तो व्हाट विल बी द टोटल एज ऑफ द क्लास, 6 into 21 दैट इज 126. सो व्हाट विल बी द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, 126 minus 100 दैट इज 26 years. फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड कि सर 5 बच्चे क्लास में थे, एवरेज एज थी 20, तो 20 इयर्स के तो कितने भी स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर लेकर आ जाए, देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज एज ऑफ द क्लास. ठीक है, बट एक बच्चे के आने की वजह से एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. इट मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 6. एवरेज में इंक्रीमेंट कितना हो, 1. तो बच्चों टोटल एज में कितना इंक्रीमेंट होगा, टोटल क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, 6 into 1 दैट इज 6 years. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि सर जो नया स्टूडेंट क्लास के अंदर आया वो क्लास के एवरेज से 6 ज्यादा होगा, उसकी एज क्लास के एवरेज से 6 साल ज्यादा होगी, तभी ये पॉसिबल है कि क्लास की एवरेज एज 1 ईयर इंक्रीज करेंगे. तो कुछ नहीं करना था, प्रीवियस एवरेज एज में 6 इयर्स को ऐड कर देंगे. तो प्रीवियस एवरेज एज वाज 20 एंड 20 plus 6 is 26. ठीक है, तो वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स in comparatively lesser time without doing any complex calculations. I hope this concept is clear to all of you. ठीक है, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो और मैं डिस्कस करता हूँ, and then we'll do some questions which have been asked in previous year examinations on basic of averages. चलिए, next concept from concept of averages is, my dear students, if I ask you what will be the average of 1, 2, 3, 4, 5, मैंने आपसे पूछा कि 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एवरेज तो आप पढ़ ही रहे हो, अगर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज कैलकुलेट करना है तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 डिवाइड बाय 5 कर देंगे. ठीक है, ये हमारा हो गया 15/5 और 15/5 मेरा कितना होता है, 3. ये तो हम कैलकुलेट करना हमने सीख लिया. ठीक है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को इसलिए सीख रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज कैलकुलेट करना है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. कितना होगा 1, 2, 3, 4 का एवरेज, 3 होगा. क्यों, कैसे होगा 3, कैसे मैंने बोल दिया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो, अगर इफ given number of observations, if given number of observations are in, if given number of observations are in arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा वो सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन्स सेम. ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 को अगर आप देखोगे तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, आप 1, 2 का डिफरेंस ले लो, 2, 3 का डिफरेंस ले लो, 3, 4 का डिफरेंस ले लो, 4, 5 का डिफरेंस ले लो, difference between any two consecutive terms always remains same. ठीक है, तो my dear students, if given number of observations are in AP, in that case अगर odd number of terms हैं,
अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो एक मिडिल टर्म जरूर आएगी, और जो मिडिल टर्म होगी बच्चों वही क्या होगी, हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट 1 2 3 4 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितना डिफरेंस 1 2 में है उतना ही 2 3 में, उतना ही 3 4 में, उतना ही 4 5 में, और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एवरेज बाय फोकसिंग अपॉन मोस्ट मिडिल टर्म। तो 1 2 3 4 5 में थर्ड इज द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो वही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे नंबर्स का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसी में ऐसा भी हो सकता है कि सर ऑब्जर्वेशंस में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और तब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करते हैं, तो एवरेज ऑफ, क्योंकि इस केस में दो मिडिल टर्म आएगी तो उनका एवरेज ले लो, एवरेज ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, एवरेज ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, या फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, या फिर सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, या फिर थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, एंड सो ऑन। जैसे इफ we have to calculate the average of 2 4 6 8 10, तो बच्चों अगर हमें 2 4 6 8 10 का एवरेज कैलकुलेट करना है तो हमें बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो गया आंसर, 6। क्यों हो गया आंसर 6? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, 2 4 6 8 10 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इन दिस केस वी विल फोकस अपॉन द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो 5 टर्म्स में थर्ड टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म, और क्या थी हमारी थर्ड टर्म बच्चों, 6। तो 6 इज द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10। तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से ही इस तरह के टर्म्स का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ इसी में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती, मानो उसने पूछा होता फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12, अगर हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करना होता तो क्या बोला मैंने कि सर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उस केस में हमारी दो मिडिल टर्म आएगी, तो या तो उन दोनों मिडिल टर्म का एवरेज ले लो। कौन कौन सी थी मिडिल टर्म, 6 और 8, तो या तो 6 और 8 का एवरेज ले लो, 6 + 8/2 दैट इज 7, या फिर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज ले सकते हैं। 2 और 12 का एवरेज क्या होता है, 2 + 12/2 दैट इज 7, या फिर आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज ले सकते हैं। 4 और 10 का एवरेज कितना होता है, 4 + 10/2 दैट इज आल्सो 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से अगर हमें इस तरह के ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैलकुलेट करना है जिसमें गिवन टर्म्स हमारी किसमें होती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, and arithmetic progression means difference between two consecutive terms throughout remains same, तो उस केस में हम उनका एवरेज ऑब्जर्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, अच्छा उसमें फिर मैंने क्या बोला कि सर अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो जो मिडिल टर्म होगी, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो पक्का एक मिडिल टर्म आएगी, तो जो एक मिडिल टर्म होगी वही हमारा एवरेज हो जाएगा। और अगर उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म आएगी, या तो उनका एवरेज ले लो, या फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज ले लो। इस तरह से भी हम गिवन टर्म्स का एवरेज बड़े स्मूथली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एवरेजेज ऑफ 2 4 6 8 एंड 10 विल बी 6 मिडिल मोस्ट टर्म, 5 टर्म्स हैं तो थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म, एंड एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 इज एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स। 6 और 8 का एवरेज कितना होता है, 7, या फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज भी आप ले सकते हैं, और आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज भी ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ we will discuss some questions based on these concept of averages, and we will try to solve all such problems विदाउट डूइंग एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जर्वेशन से ही हम क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि यही हमारा पर्पस है इन मिनी सीरीज का। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाए।
ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट रीड द गिवन क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. और जितनी चीजें मैंने लास्ट 20 मिनट्स में आपके साथ डिस्कस की, अगर आपको वो क्लियर है तो बड़े स्मूथली हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. चलिए, so let's start with question number 1. Question number 1 says we have to calculate the average of, we have to find the average of 7 consecutive natural numbers. So first of all my dear students, if we have to calculate the average of 7 consecutive natural numbers, consecutive natural number means 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 and so on, and it is given that average of 7 consecutive natural numbers is 20. The largest of these numbers is, my dear student, this is completely observation based question. We need not to use any paper or pen to solve such type of problems. ठीक है, we can solve it in just less than a fraction of second. How come? Listen to me very carefully. The average of 7 consecutive natural numbers is 20. 7 consecutive natural numbers. Consecutive natural numbers means difference between any two consecutive terms is same, or we can say that given observations are in arithmetic progression. Given observations are in arithmetic progression. And my dear students, I just told you, if given observations are in arithmetic progression, how do we calculate the average of such observations? If there are odd number of terms, then if there are odd number of terms, then middle term will be the average. Middle term will be the average. In this case, average is 20. In this case, average is given as 20. So what does it mean? It means ये जो 7 consecutive natural number हमारे पास हैं, इनमें मिडिल टर्म हमारी कौन सी है? 20. और 7 कंजिक्यूटिव नंबर अगर होते हैं तो उनमें मिडिल टर्म कौन सी टर्म होती है बच्चों? फोर्थ टर्म होती है. तो इनकी फोर्थ टर्म हमें कितनी गिवन है? फोर्थ टर्म हमें 20 दे रखी है. तो 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की वो आपसे बात कर रहा था, फोर्थ टर्म 20 है. तो व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म क्या होगी बच्चों? 21. व्हाट विल बी द सिक्स्थ टर्म? सिक्स्थ टर्म हमारी क्या होगी? 22. And what will be the seventh term, my dear student? That is 23. और उसने पूछा था the largest of these numbers. इनमें सबसे बड़ा नंबर पूछा था, तो क्या होगा इनमें सबसे बड़ा नंबर? सेवेंथ टर्म ही होगी, that is 23. So option C must be the correct answer of question number 1, my dear students. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो यू कैन फील योरसेल्फ कि हाँ सर, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सच में बिना किसी पेपर पेन के, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. सो एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज गिवन एज 20. हमने अभी पढ़ा था कि सर अगर हमें 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के एवरेज की बात करनी है तो अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा कि given observations are in arithmetic progression, and we have just discussed that if given number of observations are in arithmetic progression, in that case if odd number of terms are there, then middle term will be the average. So there are 7 consecutive natural numbers. तो अगर 7 consecutive natural numbers हैं तो मिडिल टर्म कौन से वाली टर्म होगी बच्चों? फोर्थ टर्म होगी, और वही इन 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज होगा, दैट इज गिवन एज 20. सो फोर्थ टर्म हमारी 20 और हमें लार्जेस्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, कि सेवंथ टर्म कैलकुलेट करनी है. तो फोर्थ टर्म अगर 20 है तो फिफ्थ टर्म विल बी 21, क्योंकि कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर में एक का डिफरेंस होता है. सिक्स्थ टर्म विल बी 22. सो व्हाट विल बी द सेवंथ और लार्जेस्ट टर्म? 23. So option C is the correct answer of question number 1. And I hope question number 1 is clear to all of you, my dear students. Chaliye, let's discuss next question, question number 2. Again, first read the question number 2 very, very carefully. Question number 2 says that 7 persons have 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 chocolates with them. If each of them is given 15 chocolates additionally,
what will be the average number of chocolates with them? This question is also completely observation based question, my dear students. How come? सुनिए, 7 लोग थे, कितने कितनी चॉकलेट थी? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So there are 7 observations, and given observations, my dear students, are in arithmetic progression. Given observations are in arithmetic progressions. Difference between any two consecutive terms is always remains same, that is 10 in this case. So first of all, what will be? First of all, what will be the average? First of all, what will be the average number of chocolates? So that will be the middle term. Middle term is 50. So previous average number of chocolates is 50. Now it is given that if each of them is given 15 chocolates additionally. So my dear students, if each person is given 15 chocolate additionally, अगर सबको हम 15 chocolate extra दे रहे हैं, तो in this case average also increases by 15. In this case average also increases by 15. तो इनिशियल एवरेज हमारा कितना था? 50, और कितना बढ़ गया? 15. तो what will be the new average number of chocolates with them? 50 plus 15, that is 65. So option B must be the correct answer of question number 2. I am repeating once again, listen to me very carefully, my dear students. तो उसने बोला कि there are 7 persons have 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 chocolates with them. So first of all, what will be the average number of chocolates with them? तो फिर से वही, we need not to do any calculations. क्यों? क्योंकि because given number of observations are in arithmetic progression, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, सब में 10 का difference है. So what will be the average number of chocolates with them? That is middle term, और 7th term में 4th term will be the middle term, that is 50. तो एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स था 50. फिर उसने बोला कि ईच ऑफ देम इज गिवन 15 चॉकलेट्स एडिशनली. हर एक बंदे को हमने 15 चॉकलेट दे दी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ ईच पर्सन इज गिवन 15 चॉकलेट एडिशनली, इन दैट केस एवरेज आल्सो इंक्रीजेस बाय 15. तो इनिशियली एवरेज हमारा कितना था? 50. एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 15 का. तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? 50 plus 15, that is 65. So option B must be the correct answer of question number 2. And I hope question number 2 is also clear to all of you, my dear students. चलिए, let's discuss next question number 3. Again, first read the question number 3 very carefully, my dear students. चलिए, question number 3 says that the average marks of a student in 7 subjects is 75. So average marks of 7 subjects. So average marks of 7 subject is 75. So what will be the total marks of these 7 subject, my dear students? What will be the total marks of these 7 subject, my dear students? 7 into 75, that is 7 5 is 35, 7 7 is 49 plus 3, that is 52. So what will be the total marks of these 7 subjects? 7 into 75, that is 525. Now his average mark in 6 subject excluding science is 72. So average marks of 6 subject out of 7 is 72. So what will be the total marks of these 6 subjects, my dear students? What will be the total marks of these 6 subjects? 6 into 72, that is 432. So what will be the total marks? What will be the total marks in 7 subject, or what will be his total score in science? So 525 minus 432, that is 93. So option D must be the correct answer of question number 3. तो question number 3 is also very easy question. कुछ नहीं करना था हमें. उसने 7 सब्जेक्ट्स का हमें एवरेज स्कोर दे रखा था 75. तो बच्चों 7 सब्जेक्ट का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा हमारा? तो आप बोलोगे सर 7 into 75, that is 525. उसके बाद उसने बोला कि आउट ऑफ दीज 7 सब्जेक्ट अगर हम एक सब्जेक्ट साइंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट का एवरेज हमारा होता है 72. सो व्हाट विल बी द
total marks in these 6 subjects, excluding science is 6 into 72, that is 432. So what will be his score in science? तो 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स में से बच्चों अगर हम 6 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स माइनस कर देंगे तो निकल के आएंगे 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 525 minus 432, that is 93. So option D must be the correct answer of question number 3. बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा. चलिए लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. और मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं, अननेसेसरी इक्वेशंस फ्रेम करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. अब आप बोलोगे कि सर कहीं तो आप बोल रहे थे कि बच्चे वेरिएबल कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फ्रेम करते हैं, और आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है. कैसे? अभी आप देखना, एक्सप्लेनेशन सुनना इसका, फिर आप ही डिसाइड करना कि सर ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है या इसमें हमें 2 से 3 मिनट अननेसेसरी वेस्ट करने की जरूरत है. चलिए तो फर्स्ट रीड द गिवन क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, on the day of independence, sweets were to be equally distributed amongst 300 children. ठीक है, 300 बच्चों में हमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, but on that day 50 children were absent. 50 children हमारे absent थे. 50 children were absent. तो there are total 300 students, but on that day 50 children were absent. ठीक है, तो बच्चों कितने बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन? 250 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. इट मींस 250 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन दैट डे. सो ईच चाइल्ड गॉट वन एक्स्ट्रा स्वीट. सो ईच चाइल्ड गॉट वन एक्स्ट्रा स्वीट. अब बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनो. अभी आपने बोला कि सर उस दिन 300 में से 50 बच्चे एब्सेंट थे, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे? 250 बच्चे प्रेजेंट थे. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि सर जो चॉकलेट इन 50 बच्चों को मिलनी थी वो भी हमने कितनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी? वो भी हमने 250 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना. अच्छा, और इस वजह से हर एक बच्चे को एक एक्स्ट्रा चॉकलेट मिली. एक एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलने का मतलब ये है कि 250 बच्चों में टोटल 250 चॉकलेट ही डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी. 250 बच्चों में आप 250 चॉकलेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी तो हर एक बच्चे को एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेगी ना माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि सर इन 50 बच्चों को कितनी चॉकलेट मिलनी थी? 250. तो अगर 50 बच्चों में अगर हम 50 स्टूडेंट्स में माय डियर स्टूडेंट्स 250 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट दे रहे हो? 5, क्योंकि हमें निकालना था हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड. सो एक बच्चे को हम 5 स्वीट्स देते हैं. इनिशियली बच्चे कितने थे हमारे पास? 300. तो कितनी स्वीट्स इन टोटल डिस्ट्रीब्यूट की होगी? 300 into 5, that is 1500. So again ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे वेरिएबल भी कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फ्रेम करते हैं. हार्डली 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे 2 से 3 मिनट तक भी लगा के आते हैं. कैसे? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. उसने बोला 300 बच्चों में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी बट 50 बच्चे एब्सेंट थे. ठीक है, यानी कि 250 बच्चे ही प्रेजेंट थे. तो उसने एक बात बोली कि जो चॉकलेट उन 50 बच्चों में बांटनी थी जो उस दिन एब्सेंट थे वो हमने बाकी के 250 बच्चों में बांटी. इस वजह से उन 250 बच्चों में से हर एक बच्चे को एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिली. ये क्वेश्चन में मेंशन है. तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि उन 50 बच्चों में कितनी चॉकलेट बांटनी थी? हमें 250 चॉकलेट बांटनी थी, क्योंकि 250 बच्चों को अगर हर बच्चे को एक एक्स्ट्रा चॉकलेट मिली तो इसका मतलब कितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट थी हमारे पास? 250. और एक्स्ट्रा किस वजह से थी? क्योंकि 50 बच्चे एब्सेंट थे, यानी कि वो 250 चॉकलेट 50 बच्चों में बांटनी थी. तो अगर 50 बच्चों में हम 250 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर एक बच्चे को हम कितने चॉकलेट दे रहे हैं? 250 by 50, दैट इज 5.
ठीक है, तो एक बच्चे को 5 चॉकलेट देनी है, हमें कैलकुलेट करना था कि टोटल कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। तो एक बच्चे को अगर 5 स्वीट्स मिलती हैं तो 300 बच्चे हैं, तो कितनी चॉकलेट्स होगी बच्चों, 300 इंटू 5 दैट इज 1500. So option D must be the correct answer of question number 4. And I hope explanation of question number 4 is clear to all of you, my dear students. ठीक है, चलिए, so let's discuss next question, question number 5. And please, before moving on question number 5, I request you to like and share this session as maximum as possible with your friends, my dear students. चलिए, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं एवरेज से. देखते हैं. फर्स्ट रीड द गिवन क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 15 इनिंग्स इज 48. सो 15 इनिंग्स का, ठीक है, तो 15 इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है, 48. तो बच्चों 15 इनिंग्स का टोटल स्कोर हमारा कितना हो गया, 15 इंटू 48. 15 एट 120, 15 फॉर द 60 प्लस 12 दैट इज 720. ठीक है, तो एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 15 इनिंग्स इज गिवन एज 48. सो 15 इनिंग्स में उसने टोटल कितने रन स्कोर किए होंगे, 15 इंटू 48 दैट इज 720. आफ्टर 16th इनिंग, यानी कि उसने एक इनिंग और खोली और उस वजह से एवरेज बिकम्स 50. सो average runs of 16 inning is 50. So what will be the total run scored in 16 innings? 16 into 50 that is 800. और फिर से वही बच्चों, अगर मैं 16 इनिंग्स के स्कोर में से 15 इनिंग्स का स्कोर माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, 16th इनिंग का स्कोर. So what will be the runs he scored in 16th inning? 800 minus 720 that is 80. So again option B is the correct answer of question number 5, my dear students. ठीक है, और इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं जो इनिशियली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बट आई थिंक ये भी कंपेरेटिवली आसान तरीका, इसमें भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक मेथड से और करके दिखाऊंगा. चलिए, तो उसने बोला कि 15th इनिंग उसने खेली जिनमें उसने एवरेज रन कितना था, 48. तो टोटल रन कितने हो गए, 15 इंटू 48 दैट इज 720. एक इनिंग और खेलने के बाद यानी कि 16th इनिंग में एवरेज स्कोर कितना था, 50. तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 16 इंटू 50 दैट इज 800. और अगर हम 16 इनिंग के स्कोर में से 15 इनिंग का स्कोर माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा, 16वीं इनिंग का स्कोर. तो 800 माइनस 720 दैट इज 80. मेथड तो ये है, ये भी आसान मेथड है. दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं कि सर 15th इनिंग हमारे पास थी, एवरेज रन कितने थे, 48. बच्चों को उसने 16th इनिंग में भी 48 रन ही बनाए होते तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता. एवरेज अब भी कितना होता, 48 ही होता. बट अब एवरेज कितना है, 50, यानी कि एवरेज इंक्रीजेस बाय 2. तो नंबर ऑफ इनिंग्स हमारे पास कितनी है, 16. नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 16. एवरेज में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2 का. तो टोटल नंबर ऑफ रन्स में इंक्रीमेंट कितने का हुआ होगा, 16 इंटू 2 32 का. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि सर जो 16th इनिंग में उसने रन बनाए वो प्रीवियस एवरेज से 32 ज्यादा है. प्रीवियस एवरेज कितना था, 48. तो व्हाट विल बी हिज स्कोर इन 16th इनिंग, 48 प्लस 32 दैट इज 80. इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दोनों ही आसान मेथड है. चलिए, लेट्स सी discuss question number 6. In question number 6 he is asking find the average of all prime numbers between 30 and 50. First of all, my dear students, what do you mean by prime numbers? First of all, my dear students, what do you mean by the term prime numbers? So prime number are those numbers, my dear students, which have only two factors. Prime number are those numbers which have only two factors. कौन कौन से दो factors? वन इज यूनिटी, यानी कि 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ. तो प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं. एक तो क्या होता है 1 एंड सेकंड फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे हमारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं. ठीक है, चलिए. Now in question number 6 we have to calculate the average of all prime numbers between 30 and 50.
तो बिटवीन 30 एंड 50 प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास होते हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ठीक है, तो 31, 37, 41, 43 एंड 47 ये 5 हमारे पास होते हैं बच्चों prime numbers between 30 and 50, and we have to calculate the average of all these 5 primes. So 31 plus 37 plus 41 plus 43 plus 47 डिवाइड बाई 5, ये निकल के आएगा इनका एवरेज। चलो एडिशन देख लेते हैं। 1 plus 7, 8 plus 1, 9 plus 3, 12 plus 7, 19, 9, 4, 4, 4, 5, 4, 9, 13, 199 divided by 5. So what will be the average? What will be the average of these 5 prime numbers? 199 upon 5, that is 39.8. So option D must be the correct answer of question number 6. Prime number देख लेंगे कौन कौन से हैं, average calculate करना हम पढ़ ही चुके हैं। So 39.8 is the correct answer. चलिए next question number 7. In question number 7 he is asking the average salary per month of 30 employee in a company is 4,000. तो बच्चों 30 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? 4,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 30 into 40,000, 1,20,000। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, यानी कि एक कैंडिडेट और हमने ऐड कर लिया, तो कैंडिडेट कितने हो गए? 31, और एवरेज सैलरी हमारी होगी 4,300। तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 31 into 4,300, दैट इज 00, 31 3 जा 93, 39, 31 4 जा 124 plus 9 133। और हमें किसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है? मैनेजर की। तो इन 31 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी में से अगर मैं 30 एम्प्लॉय की सैलरी माइनस कर दूंगा तो मैनेजर की सैलरी निकल के आएगी। तो 0033 तो 13,300। सो 13,300 तो कहीं भी नहीं था, दैट्स व्हाई ऑप्शन ई must be the correct answer of question number 7, that is none of these. तो ये भी कंपैरेटिवली आप देखेंगे बहुत आसान प्रॉब्लम थी हमारी, और इसको भी हमने वैसे किया कि सर 30 एम्प्लॉय की सैलरी, टोटल सैलरी कितनी होगी? 4,000। ठीक है, एक बंदा और आया, उसकी सैलरी ऐड कर ली, तो एवरेज सैलरी कितनी होगी? 4,300, और उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी थी। तो 31 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी में से अगर आप 30 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी माइनस कर दोगे तो बड़ी आसानी से उस 31st की सैलरी, उस मैनेजर की सैलरी वी कैन आंसर। ठीक है, और इसको अगर डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से करना है वो भी बड़ा आसान होता है। 30 एम्प्लॉय थे, एवरेज था 4,000, एक 31st एम्प्लॉय आया जिस वजह से एवरेज हमारा हो गया 4,300, तो कितना बढ़ा? 300। तो 31 एम्प्लॉय हो गए, एवरेज डिफरेंस था 300, तो 31 into 300 तो 9,300। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इसका मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय आया उसकी सैलरी प्रीवियस एवरेज से 9,300 ज्यादा है। बच्चों प्रीवियस एवरेज कितना था? 4,000, और 4,000 प्लस 9,300 कितना होता है? 13,300। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरेटिवली दोनों ही तरीके आसान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? एंड आई कैन बेट क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का क्वेश्चन है। अगेन दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, कोई हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में। लेकिन जितने बच्चों से मैंने आज तक ये क्वेश्चन डिस्कस किया, 99% बच्चों ने इसका आंसर मुझे गलत दिया था। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन और मैं बताता हूं कि बच्चे अक्सर क्या गलती करती हैं इस तरह की प्रॉब्लम में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस का। The average temperature of first 20 days of a month is 30 डिग्री। तो पहले 20 दिन का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री था, तो बच्चों पहले 20 दिन का टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? 600 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट फ्रॉम 28 to 38, यानी कि 1 से लेके 20 तक का एवरेज 30, तो 20 दिनों का टोटल कितना हो गया? 20 into 30 that is 600। फिर उसने बोला 20 से लेके 30 तक का एवरेज कितना है? 40। तो पहली बात तो ये कि इसमें एक सिली मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि 20 से लेके 30 तक वो तुरंत कर देते हैं 10 दिन, एवरेज कितना है? 40, तो टोटल निकाल देते हैं आखिर के 10 दिन का। 10 into 40 that is 400। बट माय डियर स्टूडेंट्स, 28 to 38 इट मींस 20th भी इंक्लूड है, 30th भी इंक्लूड है, और 20 से लेके 30 तक टोटल कितने दिन होते हैं? 11 दिन होते हैं, ना कि 10 दिन होते हैं। तो 11 दिनों का एवरेज कितना था? 40, तो टोटल कितना होगा? 440।
अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आएगा 1040, लेकिन इस 1040 में माय डियर स्टूडेंट्स 20th का टेम्परेचर हमने दो बार काउंट कर लिया, वो 600 में भी काउंट कर लिया और 440 में भी काउंट कर लिया। काउंट तो एक ही बार करना था, तो एक बार हम 20th का टेम्परेचर जो कि कितना है 20 डिग्री माइनस कर देंगे, तो यानी कि पूरे 30 दिनों का टोटल टेम्परेचर कितना है 1020, बट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल मंथ, तो 1020 डिवाइड बाय 30, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34 डिग्री, दैट इज ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो ये कि सर पहले 20 दिन का एवरेज 30 तो टोटल 600, आखिर के 10 दिन का एवरेज 40 तो टोटल 400, 600 400 1000, फिर 1000 को 30 से डिवाइड करते हैं और मैं आंसर आता है 33.33 डिग्री और ऑप्शन से टिक करके आ जाते हैं। बट इसमें गलती क्या है, गलती है कि सर 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक 10 दिन नहीं 11 दिन होते हैं, तो पहले 20 दिनों का टोटल 600, आखिरी के 11 दिनों का टोटल 440, ऐड करूंगा तो 1040 आएगा। और हमें पता है कि सर इस 1040 में हमने 20th का टेम्परेचर दो बार ऐड किया था, लेकिन बच्चे ऐड तो एक ही बार करेंगे, तो एक बार कर देंगे 20th का टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री दे रखा था माइनस, तो पूरे 30 दिनों का टोटल टेम्परेचर निकल के आएगा 1020, तो एवरेज कितना हो गया 1020 by 30, दैट इज 34 डिग्री। सो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। So this is all about basic concept of averages, my dear students. I hope all of you have enjoyed today's class. So please do like and share this session with your friends among your groups as maximum as possible, my dear students. ठीक है, from tomorrow onwards, कल से most probably हम एक नई सीरीज start करेंगे, ठीक है, और उसमें I discuss with you some basic concept of geometry and mensuration. टाइमिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऐप से, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी फैकल्टी डिटेल्स है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल न्यू वीडियोस, ताकि आपको सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फॉर एनी कोर्स रिलेटेड क्वेरी माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉल अपॉन दीज टू नंबर्स, ये हमारे काउंसलर्स के नंबर है, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। So that's all for today. All the best. Thank you so much. I'll see you most probably tomorrow. Okay, and we'll discuss once again the new concept. Thank you so much, my dear students.